Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 1 medical and non-medical stream. Today's topic is projectile motion. Projectile motion, it is a two-dimensional motion, and projectile is a name given to a body which is thrown with some initial velocity and then allowed to move under the effect of gravity alone. That means projectile name दिया गया है उस body को, उस object को जिसे मैंने एक initial velocity देकर थ्रो किया है और उसे अलो कर दिया कि सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो अपना पाथ फॉलो करे और धरती पे आके गिरे. सो विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एन इंजन और फ्यूल, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के या बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की. Any object which moves in the space under the effect of gravity alone and not being propelled by an fuel, जैसे कि क्रिकेटर ने बॉल थ्रो किया. This is also a example of projectile motion. Other examples are bomb thrown by an aeroplane, football is kicked, bullet is fired from gun. These all are the examples of the projectile motions with so many more. Next is trajectory. Path followed by the projectile is known as trajectory, and there are two types of projection. First is angular projection, second one is horizontal projection. In case of angular projection, when we throw an object with some kind of initial velocity at some angle, making with the plane on which it is standing, the person is standing. So this is termed as an angular projection because here the object is thrown at some kind of angle. But when simply horizontally velocity is given in case of horizontal projection, but the object fall down on the earth due to the gravity, due to the effect of gravity, then this is termed as a horizontal projection. So when it is projected at some angle, it is known as angular projection. When only horizontally velocity is given, then this is known as a horizontal projection. Next, here are some assumptions in projectile motion, that air resistance has no effect on the projectile motion. Air resistance का कोई भी effect नहीं पड़ेगा projectile motion पे. Next is earth की rotation की वजह से कोई भी effect नहीं पड़ेगा projectile motion पे. Next, at every point on the trajectory, the acceleration due to gravity is constant in magnitude. हर point trajectory के हर point पे path जो भी उसने follow किया उसके हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्मॉल g, that is 9.8 meter per second square. And in some cases, in some numericals, for the simplicity you also take that 10 meter per second square, but it be as constant in magnitude and acting always vertically downward due to the earth's gravity effect. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन, हम पहले ही बात कर चुके हैं. सो इसीलिए हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. First is along horizontal, second one is along vertical, and both these components are independent of each other. A horizontal motion is uniform motion and acceleration is equals to 0 along the horizontal. And acceleration is what? It is the rate of change of velocity. When some force act on body, it produces an acceleration. So acceleration means that there is change in velocity. So here in case of horizontal motion, I am saying that acceleration is 0. Acceleration is rate of change of velocity. That means rate of change of velocity is 0. That means velocity change नहीं हो रही है. That is velocity remains constant here. That is a uniform motion का definition. So horizontal motion is a uniform motion. Next is vertical motion. क्या है acceleration? Accelerated motion. Because अगर object comes down, if the object comes down, okay, if the object comes down, अगर object धरती की तरफ ही आ रहा है और उसकी acceleration भी downwards ही लग रही है, then the acceleration would be taken as plus g. And if object goes up, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जाया है, जैसे कि बॉल मैंने ऊपर की तरफ आसमान की तरफ छोड़ा है पर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी. सो बोथ आर डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो हियर एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ g. नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स, ये हम बात कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन में 0 है. दैट मींस दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन विच velocity is constant and acceleration would be equal to 0. Next is effect of any force at 90 degrees 0. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इफेक्ट
किसी भी फोर्स का 90 डिग्री पे जीरो होगा, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कूली वाला एग्जाम्पल, कि कूली जो है वो कि उस जो वर्क डन है दैट वुड बी इक्वल टू जीरो. सो फोर्स हम मानते हैं at that 90 degree it would be equal to zero in case of projectile motion also. So here in case of horizontal velocity you can see that horizontal velocity is always along the x-axis, है ना. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर केस में एक्स एक्सिस की तरफ है, बट जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है. सो हियर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, दैट मीन्स हियर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट इफेक्ट जी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी and theta would be equal to 90 degree. That means effect of any force at 90 degree is always zero. That means जो horizontal velocity है वो हर पॉइंट पे सेम रहने वाली है, उसका ग्रेविटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज एंगल हियर इज मेकिंग अ 90 डिग्री इज ऑफ 90 डिग्री. हियर इज अ वर्टिकल वेलोसिटी. अब जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका है, इस डायग्राम में ये शो किया हुआ है, ठीक है. तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, ग्रेविटी की नीचे की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ. तो g इज पैरेलल हियर टू द इनिशियल वेलोसिटी या फिर वर्टिकल वेलोसिटी. अगर वर्टिकल वेलोसिटी के पैरेलल है, दोनों ही सेम डायरेक्शंस पे हैं, दैट इज यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ग्रेविटी के साथ इफेक्ट करेगी. उसका ग्रेविटी के साथ लेना देना है, किसका? वर्टिकल वेलोसिटी का. बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या रह रही है? सेम. ओके, नेक्स्ट इज ये देखिए, ये दिखाया हुआ इस एक एंगल पे हमने प्रोजेक्टेड किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, और उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया. अलोंग एक्स एक्सिस इट इज u cos of theta एंड अलोंग y एक्सिस इट इज u of sin theta. तो आप देख सकते हो हर पॉइंट पे ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है. ये इसका ओरिजिनल कंपोनेंट है, ये जो इस पाथ के अलोंग ही शो किया हुआ है बेटे. सो दैट इज अ ओरिजिनल कंपोनेंट जो इस पाथ के अलोंग ही शो किया हुआ है इस डायरेक्शन में. और इसके बाद इन सभी को किसमें रिजॉल्व कर दिया मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एक x की तरफ, y की तरफ, x की तरफ, y की तरफ, यहाँ पे भी सेम. सो एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे देखो ये अपवर्ड लग रही है, वर्टिकल फोर्स अपवर्ड, और यहाँ पे वर्टिकल फोर्स क्या लग रही है? डाउनवर्ड, है ना. बट हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है. हॉरिजॉन्टल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस. सी, ये सेम डायरेक्शन. सो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट, और इस हाईएस्ट पॉइंट पे देखो हम हमेशा बोलते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है ना, एक बार जो बॉल मैंने जैसे ऊपर थ्रो किया तो एक बार उसकी एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो इस केस में इस पॉइंट पे, इस हाईएस्ट पॉइंट पे मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी. ठीक है, एज इट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, बट हाईएस्ट पॉइंट पे फिर जीरो क्या होगा? जिसकी वजह से वो रुक गया, जिसके ऊपर किसकी तरफ, ऊपर किसकी वजह से जा रहा था? वो वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से जा रहा था. ये हाईएस्ट पॉइंट क्यों बना? क्योंकि उसकी और ऊपर जाने की जो पावर है दैट वुड बिकम जीरो. इसका मतलब इस पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट वुड बिकम जीरो, बट इस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी बेटा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम along the trajectory as it makes. क्योंकि रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है किसके साथ? ग्रेविटी के साथ. ओके, सो 90 डिग्री पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जी को इफेक्ट, या जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगी. दैट मीन्स जी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो इट इज अ वेरी मेन पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम एट एवरी पॉइंट. और वर्टिकल वेलोसिटी क्या बनेगा? फिर वर्टिकल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन लगेगी, और वो एक्सेलरेशन कैसे लगेगी? ये हाईएस्ट पॉइंट है, फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ जा रहा है बेटे, ऊपर की तरफ जा रहा है. ये वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, तो ऊपर की तरफ जा रहा है. बट ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है, तो अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटी,
of earth, that means acceleration is negative here. So a is equals to minus of g. पर इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, डाउनवर्ड होगी, और एक्सेलरेशन भी किसकी तरफ लग रही है, डाउनवर्ड. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, प्लस जी. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.